Hello students. So today we have to do session 27. It is talking about a few new words and explanation as per the root words. What it says is front and back and uncles. That's something unique now you can understand front and back and uncles. Let's understand. The ventriloquist, we have talked about this. Last class also was talking. Earlier we have talked about that. The ventriloquist appears to talk from the belly. Belly, the stomach, Venter, ventris plus locker. Ventriloquist आ जाएगा. Loquel, locker. Last class we discussed speech. Ventri, you can understand belly. तो belly से speech निकाल रहा है. Rather than through the lips, जैसे हम बोलते हैं. Or such was the strange perception of the person who first used the word. ऐसा माना गया, like ऐसा perception है कि वो lips से नहीं बोल रहा, stomach से आवाज आ रही है, kind of thing. Lips नहीं हिल रहे, लेकिन आवाज आ रही है. Ventriloquist. Ventris belly is the root on which ventral and ventricle are built. ये दो वर्ड अगर आप वेंट्रल की बात करें और वेंट्रिकल की बात करें तो वो यूज होते हैं कहाँ पर. इसका मतलब बेली होता है. ये काफी यूज होते हैं मेडिकल साइंस में. विल टॉक अबाउट दैट. द वेंट्रल साइड ऑफ एन एनिमल, फॉर एग्जाम्पल, इज द फ्रंट ऑफ और एंटीरियर साइड द बेली साइड. एनिमल की जो फ्रंट साइड है, जो स्टमक वाली साइड है, उसको हम क्या बोल रहे हैं? वेंट्रल साइड बोल रहे हैं या एंटीरियर होता है. ठीक है, दैट इज एंटीरियर साइड यानी बेली साइड उसकी जो है. नाउ अब नाउ यू कैन सी दिस इज द डायग्राम ऑफ हार्ट. नाउ व्हाट इट सेज इज, though I have very limited knowledge about biology and all, but we can just try to find out what he's saying. We do not have to go deep into this, but let's understand. A ventricle is a hollow organ or cavity, or logically enough belly as one of the two chambers of the heart or one of the four chambers of the brain. अगर मैं हार्ट की बात करूं तो यहाँ उसने, अगर आप देखेंगे तो पिक्चर में सबसे नीचे यहाँ पर राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल लिखा है. ये एक चैम्बर दिख रहा है हमें, दूसरा चैम्बर दिख रहा है, दो चैम्बर यहाँ पर भी हैं ऊपर, बट यहाँ पर ये नीचे वाले दो चैम्बर की बात कर रहा है. दिस इज व्हाट वी से enough belly as one of the two chambers of the heart or one of the four chambers of the brain. Brain में भी ऐसा ही होता होगा. The ventricles of the heart are the lower chambers that we can see. They are the lower chambers and receive blood from the upper chambers. यहाँ से blood, वो एरो मार के दिखा भी रहा है कि यहाँ से नीचे आता है, यहाँ से नीचे blood आता है. Blood from the upper chambers known as the arteria or auricles. The auricle, so named because it is the somewhat ear shaped. याद है आपको? ऑरिस, ईयर, जिसे बताते तो ऑरिकल हो गया. ऑरल साइड का हमने बोला था, याद है आपको? जो ईयर से रिलेटेड होते थे वो ऑरल होते थे, AUR वाला, और लिप वाले जो थे वो ओरल थे. होप यू अंडरस्टैंड दैट. तो ये ईयर शेप्ड होते हैं. क्या? The auricle, so named because it is somewhat ear-shaped, receives blood from the veins. The auricles send the blood into the ventricles. यहाँ से blood जो है वो ear shaped के होते हैं, वहाँ से blood यहाँ पर आ जाता है, which in turn pump the blood into the arteries. फिर यहाँ से blood जो है फिर और arteries में चला जाता है. It is all very complicated, but fortunately it works. जो heart का functioning थोड़ा सा उसने हमारे सामने रखा है. You can very well relate it to the diagram which is given there. The adjective form of ventricle is ventricular, which may refer to a ventricle or may mean belly like bulge. थोड़ा सा bulge क्या होता है? ऊपर से निकला हुआ bulging हो जाता है, बॉल लग जाए माथे पर एक bulge आ जाता है, kind of thing ऐसा होता है. जो rat होता है उसकी bulging eyes होती हैं, protruding kind of thing, bulge हो जाता है. तो that's a bulge हो जाता है, यानी having a belly like bulge, ऐसा protruding type का हो जाता है. That's what he's trying to say, ventricle हो जाता है. Now you understand that. Now that you see how ventricular is formed from the word ventricle, can you work out the adjective of auricle? Then this is, और इसका adjective जब बनाओगे तो that is will say auriculate हो जाएगा. That is the auriculate हो जाएगा. How about the adjective of vehicle? Vehicle का अगर हमने adjective बनाना हो तो क्या बनाओगे? Vehicular हो जाएगा, isn't it? And then circle का circular हो जाएगा. And no doubt you wrote auricular, okay, vehicular, circular. No doubt you wrote auricular, vehicular or circular
and have discovered that nouns ending in CLE form adjectives ending in cular. That is what we say. I think we really need to make the word यहाँ पर auricular. We need to set it right, kindly correct. This is auricular. So then we say auricular, then we vehicular, then we say circular. Means when you write the word cular, it gives you the adjective ending in cular. Now, so now work out the adjective derived from. और अब देखिए अब और कोई adjective कैसे बना सकते हैं. Clavicle, it means clavicular होता है. Now we need to understand clavicular क्या है. तो technical form of collarbone we say. तो ये clavicular जो है वो collarbone से associated है. Then cuticle, cuticle is the उसका cuticular हो जाएगा. Cuticle तो शायद आपने सुना भी हो. The dead skin at the base of a fingernail or toenail. Normally अगर आप देख सकते हैं तो ये जो nail हमारा होता है इसके नीचे वाले सेक्शन में भी अगर नेल है और ये हमारी फिंगर है तो ये फिंगर के यहाँ पर जो सेक्शन है दिस इज नोन एज क्यूटिकुलर हो जाता है. ओके. देन वेसिकल इज वेसिकुलर हो जाएगा. एंड देन द स्मॉल फ्लूइड सैक और सिस्ट विद इन द बॉडी हो जाता है. देन वेसिकुलर है, बायोलॉजिकल टर्म है. देन टेस्टिकल, तो टेस्टिकुलर हो जाएगा. टेस्टिकुलर मीन्स either of the two oval organs that produce sperm in male mammals, that is testicular हो जाता है. And then uncle, uncle का हम बनाते हैं avuncular, that is like an uncle in being. तो जो uncle से related है चीजें वो avuncular होती हैं. अब आप कहेंगे क्लेविकल का क्लेविकुलर बना, क्यूटिकल का क्यूटिकुलर बना, वेसिकल का वेसिकुलर बना, टेस्टिकल का टेस्टिकुलर बना, बट अंकल का avuncular बन गया. This is something English says. And then he says in a very jovial manner, he is saying the answer of course are clavicular, cuticular, vesicular, testicular and for uncle. You have every right to shout not fair. यार ये कैसे बन रहा है. बट उसने साथ ही साथ में जोकिंगली बात कह दी not fair, but where is it written that life is fair. मतलब ठीक है यार, you accept it as it is. That is what it's trying to tell you. फिर आगे एग्जाम्पल भी बता रहा है कि क्यों. द लैटिन वर्ड फॉर अंकल, एक्चुअली अंकल ऑन मदर साइड इज नोन एज एवंकुलस. तो ये वर्ड जो है ना मदर साइड वाले जो अंकल हैं उसके लिए एवंकुलस वर्ड लगता है, तो इसलिए वहां से वर्ड एवंकुलर बन गया है. ठीक है, ये लैटिन वर्ड से उठाकर ले आया है. एंड फ्रॉम विच वी गेट एवंकुलर रेफरिंग टू दी अंकल. नाउ यू अंडरस्टैंड कि वो कैसे वर्ड बना है. ओके. Then, now what about an uncle? Well, traditional uncle होता कौन है? Traditional or stereotypical uncles are generally kindly, permissive, indulgent, protective and often give helpful advice. Permissive, allowing or characterized by freedom of बिहेवियर. परमिट करते हैं कि चलो करने दो, अगर आपके डैडी नहीं मान रहे तो अंकल मना लेंगे, वो परमिसिव हो जाते हैं. इंडल्जेंट होते हैं क्या? टॉलरेंट और लीनियंट, रेडली इंडल्जिंग समवन और ओवरलुकिंग देयर फॉल्ट्स. वो आपकी हेल्प करते हैं, छोटी मोटी आपने गलती भी कर दी तो अंकल विल कम एंड देन सेव गार्ड यू, दैट इज इंडल्जेंट हो जाते हैं. प्रोटेक्टिव एंड ऑफन गिव हेल्पफुल एडवाइस. सो एनीवन हु एग्जिबिट्स शोज one or more of such traits यानी characteristics, distinguished qualities to another, usually younger person, is avuncular or acts in an avuncular capacity होता है. नॉर्मली वो हमारे जो भी अंकल होते हैं वो हमारे से बड़े होते हैं, तो उसके बाद वो ही एक्ट्स इन एन एवंकुलर कैपेसिटी होता है. एवंकुलर अब आपको समझ आ गया कि वो मैटरनल साइड वाले एवंकुलस से बना एवंकुलर होता है. नाउ यू नो अंकल क्या है. सारे अंकल की कैटेगरी में आते हैं, चाचा मामा ताऊ सारे अंकल की कैटेगरी में आते हैं. दैट इज व्हाई ही सेज अंकल होता है. ओके. नाउ सो एट लॉन्ग लास्ट to get back to ventral, वापस वहीं चले जाएं. If there is a front or belly side, anatomically there must be a reverse. अगर front side है तो reverse side भी होगी. तो अगर वो ventral side थी तो back side also, that is the dorsal side from word dorsum, the root on which the verb endorse is built. डॉर्सल से ही वर्ड बना है, एंडोर्स वो बाद में बात करते हैं, लेकिन जब वेंट्रल साइड है तो फिर उसकी जो बैक साइड है वो क्या है? डॉर्सल साइड है. दैट व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड. इफ यू एंडोर्स ए चेक, अब देखिए
आप कई बार चेक को इंडोर्स कर देते हैं, इसका मतलब क्या है, यू साइन इट ऑन द बैक साइड, ऑब्वियसली नहीं, दैट इज व्हाट द केस इज. इफ यू endorse a plan, an idea, etc., you back it, you express your approval or support. The noun is endorsement. Obviously you can understand कि noun क्या होगा. There's nothing big to tell you कि अब noun बनाओ. अब तो करते करते मेरे ख्याल से हम बूढ़े हो चुके हैं कि noun पर noun कैसे बनाना है, उसका adjective कैसे बनेगा. We're learning with every slide. You must have learned. The noise and the fury. Fury means extreme anger होता है, ठीक है. वॉसिफरस पहले हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में. वॉसिफरस डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड वॉक्स, वॉसिस वॉइस, अ रूट यू मेट इन चैप्टर 9, ऑलरेडी वो बता रहा है. प्लस फेरो टू बीगर और कैरी, ये भी हम पढ़ चुके हैं. वॉसिफेरो, अपनी वॉइस को आप कैरी करते हैं. ए वॉसिफरस रीजॉइंडर, रीजॉइंडर इज ए डिफेंडेंट्स आंसर टू द प्लेंटिफ्स रिप्लाई. प्लेंटिफ कौन होता है, जो कोर्ट में केस पहली बार डालता है किसी के अगेंस्ट, जो इनिशिएट करता है वो प्लेंटिफ होता है. तो प्लेंटिफ ने जो भी रिप्लाई दिया होगा या प्लेंटिफ ने जो भी स्टेटमेंट लगाई, उसके अगेंस्ट, जो जिसके अगेंस्ट लगाई थी, वो डिफेंडेंट अपना रिप्लाई देता है. नेचुरली वो शाउट करेगा, वो कहेगा यार मैंने ऐसा नहीं करा. तो vociferous rejoinder carries a lot of voice, that is, it is vehement, loud, noisy, clamorous, shouting. सबका मतलब ही noisy होता है. The noun is vociferousness, the verb is vociferate. Hope you understand that. Can you form the noun derived from the verb? And that will be vociferation हो जाएगा. Obviously vociferate अगर verb है तो फिर उसका vociferation should be the क्या noun होना चाहिए. To sleep or not to sleep, that is the question. The root pharaoh is found also in somniferous word होता है. अगर आप ध्यान से देखें, this word is somniferous, और somni word हम पहले देख चुके हैं. somniferous carrying, hearing or bringing sleep. Okay, carry करना होता है. So a somniferous lecture is so dull and boring that it is sleep inducing. Okay, hope आप मेरी वीडियो देखकर सो नहीं रहे होते, लेकिन कई बार क्लास में जब हम पढ़ रहे थे, टीचर हिस्ट्री पढ़ा रहा है या कोई ऐसा सब्जेक्ट जो आपको पसंद नहीं है, तो यू मस्ट बी डोजिंग ऑफ. तो वो लेक्चर क्या सॉमनीफेरस होता है. सॉमनी एंड फेरो यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड, यानी नींद कैरी कर रही है, काइंड ऑफ सॉमनीफेरस हो जाता है. फेरो इज कंबाइंड विद सॉमनस, स्लीप, ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं. इन सॉमनीफेरस द सफिक्स OUS इंडिकेट व्हाट पार्ट ऑफ स्पीच. अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या हुआ, ऑब्वियसली वो एडजेक्टिव बन गया नहीं. एंड देन tack on the negative prefix in. याद है हमने बोला था inactive, insensitive, inappropriate. Tack on the negative prefix. Tack on करना to add something to something already existing. यानी अगर हम इसे somnus में in लगा दें तो क्या बन जाएगा, insomnus यानी insomnia बन जाएगा, यानी the abnormal inability to fall asleep होगा, नींद ना आने की बीमारी हो जाती है, insomnia. You can very well understand. Now when sleep is required or desired, तब वो वासी वाली बात करते हैं. The unfortunate victim of this disability, insomniac हो जाएगा, जिसको ऐसी बीमारी है तो insomniac माना जाएगा. The adjective will be insomniac और insomnious हो जाएगा. So OUS, in case you could not answer the question in the preceding paragraph, is adjective suffix. अब हमें जब वो पहले हमने OUS पूछा तो जो मैंने यहाँ लिखा हुआ था, तो यानी अब आपको समझ आ गया कि OUS लगाने से डिजायर से डिजायरस बनता है, वही नो इट लाइक काइंड ऑफ थिंग. एम्बिशन से एम्बिशियस बनता है, तो वैसे ही इंसोमनियस बन गया, तो ये एडजेक्टिव सफिक्स हो जाता है. OUS जब भी लगेगा एडजेक्टिव में कन्वर्ट करेगा. नाउ add a different adjective suffix to somnus to derive somnolent हो जाएगा. नाउ आपने क्या बोला, somnolent हो जाता है. sleepy, drowsy. Can you construct the noun form of somnolent? drowsy क्या होता है, जब हल्की हल्की आपको नींद आने लगती है, ऊँघने लगते हो आप, डोज ऑफ करते हो. स्लीपी एंड लेथार्जिक होता है. तो अगर आप somnolent का अगर बनाना चाहें नाउन फॉर्म तो somnolence बनेगा. ओके, यानी somnolent कौन हो गया, काइंड ऑफ जो ड्राउजी है, somnolent होता है. somnolence you feel that time. combine somnus with ambulo. now ambulo means walk है, in so you have somnambulism आ जाएगा, somnambulism आ जाएगा. walking in one's sleep. with your increasing skill in using etymology to form words, write the term for the person who is a sleepwalker. तो फिर क्या होगा, somnambulist हो जाएगा, somnambulist हो जाएगा. somnus आपके पास वर्ड है,
एम्बुलो आपके पास वर्ड है जिसका मतलब वॉक है, तो वहां से हमने क्या बनाया, जो नींद में चल रहा है वो somnambulisk आएगा. Then now add to the word you wrote a two-letter adjective suffix we have learned to form the adjective. क्या बनाएंगे, somniferous हो जाएगा. ओके, क्या हो जाएगा, somniferous हो जाएगा. अगर हम उसका adjective बनाएं, OUS लग गया, वो आपने पहले ही बनाया था. somni, somnus, फेरो, एम्बलो, और फिर हमने सोमनो और फेरो और OUS, तो somniferous बन गया. ओके, सो a walk away, a walk away. And a ambulatory patient as in a hospital or convalescent home. convalescent होता है, देखिए जहाँ पर लोग थोड़ा रिकवर हो रहे होते हैं, जैसे आपको किसी को आईसीयू से निकाल के वार्ड में रख दिया और वो थोड़े दिन रिकवर कर रहा है, अलग रूम में रख दिया, तो ए ambulatory patient as in a hospital or convalescent home is finally well enough to get out of bed and walk around. वो घूम सकता है वहां पर, ठीक है. कॉन्वेल्सेंट जो पेशेंट होता है, एम्बुलेटरी वर्ड लगा रहा है, एम्बुलेटरी पेशेंट को हम बोल रहे हैं कि वो थोड़ा सा घूम सकता है. ए प्री एम्बुलेटर ऑफन शॉर्टन्ड टू प्रैम, जो हमने जो पिक्चर में दिखा रखी है, इज अ बेबी कैरेज, अ व्हीकल फॉर वॉकिंग एन इन्फेंट थ्रू द स्ट्रीट्स. पर टू, थ्रू मतलब आप अगर आप देखें तो वो थ्रू मतलब स्ट्रीट के बीच में से निकालना, तो फिर हमने पहले पर लगाया फिर एम्बुलर लगाया, तो पर एम्बुलेटर हो गया, तो पिर एम्बुलेटर हमने वर्ड बोला. तो पर, यहाँ अगर आप देखोगे थ्रू एम्बुल मतलब वॉक, तो फिर हमने बोला पिर एम्बुलेटर बन गया. टू पिर एम्बुलेट इज एटमोलॉजिकली टू वॉक थ्रू, हैंस टू स्ट्रॉल अराउंड. कैन यू राइट द नाउन फॉर्म ऑफ दिस वर्ड. यानी कन्वेल्सेंट आप समझिए जो रिकवर कर रहा है, फिर एम्बुलेटर बेबी कैरेज हो गया, स्ट्रॉल करना लेजली वॉक होता है. हाँ, अगर हम इसने कैन यू राइट द नाउन फॉर्म ऑफ दिस वर्ब, जो आप स्ट्रॉल कर रहे थे तो उसका नाउन भी स्ट्रॉल ही होता है. जो स्ट्रॉल्ड वर्ब हो गया, बट यू आर हैविंग ए स्ट्रॉल, तो नाउन भी वही रहता है. टू एम्बल इज टू वॉक एमलेसली, और वहीं से एम्बुलेंस बनाया. is so called because originally it was composed of two stretcher bearers who walked off the battlefield with a wounded soldier. जो स्ट्रेचर होता था उसको जो भी वुंडेड सोल्जर होता था उसको लिटा लेते थे, दो लोग कैरी करते थे. एंड ए प्रीएम्बल इज बाय एटमोलॉजिकली समथिंग दैट वॉक्स बिफोर. प्रीएम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्री बिफोर, बिफोर हैंड, hence an introduction or introductory statement. A preamble to speech etc. or any event that is introductory or preliminary to another, as in an increase in inflationary factors in the economy is often a preamble to a drop in the stock market. यानी अगर कुछ ऐसा हो जाता है तो हमें ऑटोमेटिक समझ आ जाता है कि मार्केट में, स्टॉक मार्केट में ड्रॉप आने वाला है. एन इंक्रीज इन इन्फ्लेशनरी फैक्टर्स, अगर इन्फ्लेशन हाई होने लगता है तो हमें समझ के आता है वो प्रीएम्बल है, उससे पहले से ही इंडिकेट आ जाता है वॉक बिफोर कि यार मार्केट, स्टॉक मार्केट में ड्रॉप आने वाला है. तो हमने प्रीएम्बल हमने क्या से देखा, एम्बल हमने देखा. एम्बल का मतलब है लेजी वॉक है, तो उसने बताया कि वो स्टेजर से कैरी करते थे, इधर उधर करके ले जाते होंगे निकाल के, तो वहीं से फिर एम्बल बना, तो वहीं से एम्बुलेंस बन गया. और फिर एम्बल में अगर प्री एम्बल लगा दिया तो यानी प्री पहले वैसे ही है और एम्बल मतलब वॉक है, तो वॉक बिफोर हो गया. तो वहीं से प्रीएम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है, किसी भी स्टेटमेंट में जो पहले बोला जाएगा स्पीच से पहले वो प्रीएम्बल है. और वैसे ही बता रहा है कि इज ऑफन ए प्रीएम्बल टू द ड्रॉप इन द स्टॉक मार्केट है. होप यू अंडरस्टैंड दैट. ओके, नाउ बैक टू स्लीप. फिर स्लीप वाले की बात करते हैं. सोमनस इज वन लैटिन वर्ड फॉर स्लीप, सोपर इज अनदर. अब जैसे स्लीप के लिए सोमनस वर्ड था, ऐसे एक सोपर वर्ड भी स्लीप के लिए यूज करते हैं हम लोग. ही सेज ए सोपोरिफिक का भी आपने सुना होगा. अ सोपोरिफिक लेक्चर, स्पीकर, स्टाइल और डिलीवरी एटसेट्रा विल पुट द ऑडियंस टू स्लीप. सोपोरिफिक ड्रग्स भी आती है मार्केट में, लिखा ही हुआ है. एंड सोपोरिफिक इज अ स्लीपिंग पिल आता है. तो सोपोरिफिक मतलब दैट कॉजेज यू sleep, induces sleep. Noun suffixes, noun suffixes, prefix suffixes. क्या? You know that ness can be added to any adjective to construct the derived form of to construct the derived from inarticulate. Inarticulate से अगर आपने noun बनाना है तो inarticulate ness बन जाएगा.
obviously understand. Then inarticulate is a combination of the negative prefix in. अब ध्यान से देखिए inarticulate कैसे बना है. Latin articulus means a joint. The inarticulate person has trouble joining words tolerate coherently. Words together coherently. हमने बोला ये बड़ा articulate speech होती है. हमने बार बार बोला है articulation क्या होता है. तो inarticulate उसका opposite हो गया. तो in negative हो गया और articulate में articulus जो है वो किसको कनेक्ट कर रहा है, ज्वाइंट को. तो आप इन आर्टिकुलेट हो गए, यानी आप वर्ड्स को कोहेरेंटली ज्वाइन नहीं कर पाते, वन आफ्टर द अदर आप उसको बड़ा अच्छे तरीके से प्रेजेंट नहीं कर सकते. दैट इज इन आर्टिकुलेट स्पीच हो जाती है. इफ यू आर क्वाइट आर्टिकुलेट ऑन द अदर हैंड यू ज्वाइन योर वर्ड्स टुगेदर इजीली. यानी ये स्टेटमेंट अगली वाले से अगली वाले, ये नहीं आप कहेंगे सामने वाला सुन रहा है वो पागल हो रहा है पता नहीं क्या बोल रहे हैं. बट इफ स्पीकिंग इन आर्टिकुलेट मैनर इट मीन्स इट इज ए वेरी fluent, it is a very fabulous, it is a very understandable speech kind of thing. So if you are quite articulate, on the other hand, you join your words together easily, you are verbal, vocal, possibly even voluble. The verb to articulate is to join, is the express your vocal sounds, is a please articulate more clearly. आप कहते हैं यार थोड़ा सा और इसको articulate करिए और ज़्यादा ढंग से समझाइए. This is what you want to say. Can you write the noun derived from the verb articulate? अगर articulate से noun बनाना हो तो फिर articulation बन जाएगा. Another and very common noun suffix attached to adjectives is, as you have discovered, ity से भी तो आपको पता है आप चेंज कर सकते हैं. So the noun form of banal is either banalness और banality हो जाएगा. तो ness से भी बना सकते हैं noun form, id से भी बना सकते हैं noun form. फिर वो आपको बता रहा है ऐसे वर्ड चेंज किया जाएगा. Now, bear in mind then that ness and it are common noun suffixes attached to adjectives, and ion is a noun suffix frequently affixed to verbs. देखिए क्या बताने की कोशिश कर रहा है. ness और it जो है ये जो है क्या है, कॉमन सफिक्स नाउन सफिक्सेस है अटैच टू द एडजेक्टिव. यानी एडजेक्टिव के आगे ये लगाओगे तो नाउन बन जाएगा. लेकिन आईओएन एक कैसा है, आयन और एशन इज अ नाउन सफिक्स फ्रीक्वेंटली अफिक्स टू द वर्ब्स. ये जो आईओएन और जो एशन है वो वर्ब के साथ लगाते हैं. जैसे आर्टिकुलेट है तो आर्टिकुलेट का अगर बनाएंगे तो आर्टिकुलेशन हो जाएगा, वोकलाइज का बनाएंगे तो वोकलाइजेशन हो जाएगा, और प्रेम्बुलेट का बनाएंगे तो प्रेम्बुलेशन हो जाएगा. होप यू अंडरस्टैंड. So now that is what the whole thing is. This chapter he's talked about how to convert noun, how to convert verb, and from verb you have to make the adjectives, or from verb you have to make the noun, and all these things. And then he has talked about a few words that we already learned, but he's giving you a little more in-depth knowledge about soper. जैसे उसने अभी आपको बता दिया तो वो soporific हो गया. That's all we have in this session, session 27. Very short session, have few invaluable information for you. Hope you have understood this. Kindly revise the exercise afterwards, whatever you have after this session. That will complete the knowledge of this session. Thank you very much for watching. Let's meet in session 28 very soon. God bless you.